ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی شہر کے مسائل کے حوالے سے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو، پانی کا ہو، سیوریج کا ہو، سڑک کا ہو، کہیں کا بھی مسئلہ ہو تو آپ کو کہیں 4 لوگ نظر آتے ہیں، کہیں ایک گروپ نظر آتا ہے، کہیں دوسرا گروپ نظر آتا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے جھنڈے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن اثر کسی کا بھی نہیں ہوتا مسئلے کو حل کرانے میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کچھ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں کرتا ہوں، کوئی دوسرا کرتا ہے، میں ہر طرف سے تو میں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم کی آواز کہیں سے سنائی نہیں دیتی، لیکن آج ہم آپ کو ہم کی آواز سنانے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو پینلسٹ موجود ہیں گیس، ان سے میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اور ان کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اپنے اپنے مسائل کے لیے میں نہیں کرتے رہو، بلکہ مل کر مسائل کا حل کرو، اور ہم مل کر حل کریں گے۔ اور انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کا نام بھی رکھا ہے ہم کراچی۔ تو میرے ساتھ گیسٹ ہیں، میں ان سے تعارف کرواؤں گا آپ کا، اور جناب فیصل حمید صاحب موجود ہیں جو کہ بانی چیئرمین ہیں ہم کراچی آرگنائزیشن کے۔ بہت شکریہ آپ کا فیصل حمید صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید طاہر رحیم صاحب جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا طاہر صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی صاحب جو اسی آرگنائزیشن کے وائس چیئرمین ہیں۔ بہت شکریہ آپ کو محمد علی صاحب۔ فیصل حمید صاحب، یہ میں سے ہم کا سفر کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنی جو آرگنائزیشن ہے جسے ہمیں الحمدللہ 1 سال ہو گیا ہے، ماشاء اللہ، اور اب ہم ان چیزوں میں آ رہے ہیں کہ ہم نے سال بھر جو چیزیں کری ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو اب ویسے تو ہم بتاتے رہے، لیکن اب تھوڑا سا یہ بھی بتاتے رہے کہ اب ہم نے کام کیا 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 اور کس طریقے سے آگے جانا ہے۔ میں سے ہم کا سفر، آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا، واقعی یہی بات ہے۔ ہم نے یہ چیزیں سوچی کیونکہ ہم کام کرتے چلے آ رہے تھے، ہم سمجھیں کہ دوست ہیں، ایک انڈسٹری سے تعلق ہے، بزنس کا کام کرا رہے ہیں، تو اس میں ہم کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ پھر لاک ڈاؤن کا اپنے ایک سلسلہ آیا تو مل کے پھر ہم نے کام کیا۔ اس کے بعد سے جو چیزیں ہوتی چلی گئی نا، تو وہاں ہم لوگوں نے ایک چیز کا بہت خاص طور پہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ تھا شعور۔ اور یہ وہی چیز ہے کہ کوئی کہتا ہے میں، کوئی کہتا ہے تو، کوئی کہتا ہے آپ، کوئی کہتا ہے تم۔ ہم نے کہا یار یہ چیزیں جو ہیں نا، یہی سب سے بڑی میرے خیال سے شاید پرابلم آ رہی ہے مسائل کے حل کے لیے، کیونکہ ہر کوئی بندہ مسائل کے اوپر بات کرتا ہے، حل کے اوپر کوئی بات کرے نا، حل لے کر آئے اور اس کو حل کرنے کی طرف جائیں۔ ہم نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، تو ہم نے اس چیز کو کہا کہ جب ہم سب مل کے کام کریں گے نا تو پھر وہ ہوگا ہم، اور کراچی جو ہے پھر نا، ہمارا کراچی، ہاں یہ کراچی جو ہے نا، یہ ہم جو ہیں اس کی ساری سب چیزوں کی ریپرزنٹیشن ہر کوئی کرتا ہے، لیکن الگ الگ طریقے، دیکھیں سب بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے الگ الگ اس میں کام کر رہا ہے۔ ہم نے یہ چیزیں نہیں کری، ہم نے بولا مل کے کام کریں، جوائن ہینڈز، جوڑنے کا کام ہمارا جو ہے وہ اپنے کانسیپٹ یہ بائی چیز یہی ہے کہ مل کے جڑ کے کام کرنا۔ ہم کراچی ایک پلیٹ فارم ہے، کراچی کا ہر رہنے والا ہم کراچی کا ممبر ہے، یہاں پہ آئے، ہم سے بات کرے، جو کچھ بھی ہو سکے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم اس کو جو ہے نا سلوشن کی طرف اس کو ہم گائیڈ بھی کریں گے۔ اور جہاں تک جو چیزیں ہوتی ہیں اختر بھائی، اللہ پاک کے کرم سے الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ یہ کوئی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ جس میں ہم بہت فخریہ ہم بات کہیں کہ یار کسی کی مشکل حل کر دی، اتنے راشن بانٹ دیا، یوں کر دیا، ایسے کر دیا۔ یہ اللہ پاک یہ ساری سب مشکل و پریشانیاں جو ہیں وہ ختم فرما دے، ضرورت ہی نہ ہو، لیکن اپنا اپنا کردار تو پیش کرنا ہے نا۔ انسانیت کی خدمت کیسے ہوگی سر؟ صحیح۔ جناب طاہر رحیم صاحب، بہت آپ شکریہ یہ جناب۔ بتائیے کہ عموماً ہمیں نظر آتا ہے کہ ادارے تو اپنی جگہ جو ان کی کارکردگی ہے سب کے سامنے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے، لیکن جگہ جگہ آپ کو چیزیں، کچرا کہیں ٹوٹ پھوٹ، کہیں کچھ اور کہیں جو ہے وہ لانز اجڑے ہوئے ہیں، کہیں گراؤنڈ اجڑے ہوئے ہیں، کہیں سڑکیں اجڑی ہوئی ہیں، سب نظر آتا ہے۔ آپ کو اونرشپ نظر آتی ہے کراچی کے رہنے والوں کی؟ نہیں جی، کراچی کی اونرشپ کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوتا بھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو اگر ہم بالکل حقیقت کے دائرے میں دیکھتے ہیں تو اونرشپ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ سب نے ہر چیز کا ملبہ کسی نہ کسی کے اوپر ڈالا ہوا ہے سوتا بھی، مطلب اس چیز کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے اس وقت۔ کراچی میں رہتے سب ہیں، کراچی کو اون لیکن کوئی نہیں کرتا، اور یہ شاید کراچی کی بدقسمتی بھی شاید یہی ہے اس وقت جو سب کے سامنے موجود ہے۔
नो डाउट कि कचरा कुंडी कह लें या जो भी इस वक्त टूटी फूटी सड़कें हैं, जो कुछ भी है जहाँ से हम आप गुजर करके आ रहे हैं इस वक्त अभी, वो सबके लिए तकलीफ का बाइस है। लेकिन उसको ओन करने को तैयार नहीं है, ना कोई इदारा उसको ओन करने को तैयार है, ना कोई सियासी जमात उसको ओन करने को तैयार है। सब अपना इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर सिर्फ लगा रहे हैं इस वक्त अभी, हल किसी के पास नहीं है। बाहर तो सबको सिर्फ ओहदों से मतलब है, ओहदे पकड़ लें बस, उसके बाद एग्जैक्टली कराची शहर के सारे मसले हल हो गए, बस बिल्कुल, ओहदा मिल बिल्कुल। गया तो समझ ले मसले हल हो गए। सबको सिर्फ ओहदों से कंसर्न है, इसके अलावा किसी को कहीं पर तो कोई ये concern हम नहीं है। कराची का नाम जब मैंने सुना और देखा तो मुझे इसमें वो ओनरशिप महसूस हुई, फील हुई मुझे कि इसमें एक ओनरशिप महसूस होती है। ऐसा ही है इसका बिल्कुल purpose? बिल्कुल जो उसका हम कराची का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है, मैं से निकल के हम पे आना, क्योंकि मैं में कुछ नहीं है। क्योंकि जिस दिन हम अपनी मैं छोड़ देंगे ना, तो शायद हम कुछ कर सकते हैं फिर। तो हम लोगों ने जो इसको मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को जब हमने बनाया, जो उसको हमने कायम किया, उसका जो बेसिक कंसर्न था, हमारा कंसर्न भी यही था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मिलके काम कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव वे में हम तमाम लोग मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। मोहम्मद अली साहब, आप क्यों इन लोगों के साथ हैं, क्या वजह? क्योंकि हम सब एक साथ हैं और हम बनाने से पहले भी इकट्ठे थे, आज भी हैं और इंशाल्लाह ताला आप भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम भी आपके आप साथ। कराची का हिस्सा हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जो इस शहर का हिस्सा है, इस मुल्क का हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है। जिस तरीके से आप एक मोहल्ला कमेटी बनाते हैं, जिस तरीके से आपकी बिल्डिंग्स के अंदर कमेटीज होती हैं, इसी तरीके से हम कराची तमाम फैमिलीज का मेंबर है और तमाम कराची वाले उसके मेंबर हैं। हर इंसान को अपने इलाके में अपने पॉइंट के हिसाब से हम कराची के साथ मिलकर काम करना है। आपका काम गली मोहल्लों की सफाई, लोगों की किसी सफ़ेद पोश की मदद। हमारी कोशिश ये है कि अगर किसी सफ़ेद पोश की आप मदद कर रहे हैं, हम कराची के स्टेज से ना उसकी आपको कोई तस्वीर नज़र आए, ना उसकी कोई तशहीर हो और ना ही आपकी हो। सिर्फ हम कराची का ये काम हो कि वो वहाँ पर पहुँचे। इंक्वायरी ज़रूरी है, उसकी तमाम तसल्ली करने के बाद मुस्तहिक लोगों तक वो तमाम मामला जो मुस्तहिक हजरात तक प्रॉपर पहुँचा सकें, उसको कोशिश करके हम कराची इस एम को लेकर चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। राइट, ठीक है। जनाब फैसल हमीद साहब, तो आप ये बताइए कि एक साल का सफ़र कैसा रहा और उसमें आपने क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव किए? एक साल का सफ़र सर, हमने बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन हमने सीखा बहुत। अच्छा, क्या सबक सीखा आपने? हमने ये चीज़ें सीखी कि किस तरीके से छुप के काम किया जाए और अच्छा। किस तरीके से जो है वो हम अपनी जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है या हमें जितने भी केसेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उसको जो है 100% उसमें किस तरीके से हमें देना है। तो उसका हमने जो है इस साल भर में जिस तरीके से हमने किया, क्योंकि हम अपनी मदद आप के ऊपर हम काम करते हैं और जो हमारे अपने क्या नाम है फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल है, फिर हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, फिर हमारे साथ जो लोग हैं, उनके साथ हम लोगों ने जो मिलके ये काम ये चीज़ें करी। तो मैं बल्कि हम कुछ दिन पहले यही बात कर रहे थे कि क्या सीखा है, तो ये बात ये सीखी कि भाई अगर कोई भी काम जो है नेक नियति के साथ करी जाए, खुलूस के साथ करी जाए, ईमानदारी के साथ करी जाए, तो अल्लाह पाक ने हमें इस चीज़ के लिए चुना है ना बॉस। अब इतने अरसे से हम 25-25, 30-30, 32-32 सालों से हम लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आज ये 2-3 सालों में क्या ऐसी चीज़ें हम में ऐसी चीज़ें आ गई, लोगों ने पूछा, लोगों ने कहा तब्दीली कैसे आई है, कि ये कैसा ख्याल आ गया आपको कि ये इस तरफ कैसे? मैंने कहा ये अल्लाह पाक लेके आया, क्योंकि लॉकडाउन के हवाले से जब हमने काम किया था हमें नहीं मालूम था कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें, सब कुछ बंद होता था। कोई बाइक पे निकल गया, कोई किसी की गाड़ी पे चला गया, इस तरीके से हमने काम किया। तो हमें समझ में आई कि काम हो सकता है, कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़े, कोई बाकोजित करनी पड़े। हमने काम किया और वहाँ से हम सीखते चले गए और उसके बाद फिर ये चीज़ हुई कि फिर उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से और एक प्लेटफॉर्म के अपने वो हम काम करें। हम नहीं कहते कि हम कोई ब्रांड है या हम कोई बहुत अपने क्या नाम है कोई
ऑर्गेनाइजेशन, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमने सिर्फ कराची की हद तक रखा हुआ है। लेकिन अभी सैलाब के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए हमने, जब कराची में बारिश स्टार्ट हुई थी ना, हमने उस वक्त से काम करना शुरू कर दिया था। और फिर हमें पता चला क्या ठट्टा में प्रॉब्लम आई है। तो जब लोगों को मालूम भी नहीं था, पता भी नहीं, क्योंकि एकदम मीडिया में जब हाईलाइट हुआ था ना, जब चीज़ें पता चली ना, तो हम उस वक्त एक ऐसा जो था ना, हम अपने क्या नाम है पूरा, हमें कुछ हमें टेंट्स मिल गए, कुछ हमें पानी की बोतलें मिल गई, और अपने फिर हमारे जो राशन का जो होता है वो चीज़ें हम ले लिवा के हम ठट्टा पहुंच गए थे। अच्छा, चलें सैलाब ज़दगान के हवाले से जो आपने काम किया इस पे हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हम कराची ऑर्गेनाइजेशन की कि मैं से हम तक का सफ़र कैसे हुआ और कराची की ओनरशिप बिलाखिर कौन लेगा। अगर आपने हमारे पैनलिस्ट से कोई सवाल करना हो, या कोई आप बात करना चाहें, कोई आप तजवीज़ देना चाहें, या इन्हें ज्वाइन करना चाहें, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है। और जनाब फैसल हमीद साहब, तो सैलाब ज़दगान की बात हो रही थी, आपने बात की कि ठट्ठा की आपको जब इत्तला मिली तो फिर आपने क्या किया? जी, तो हम वहाँ पे फिर पहुँचे हमने, क्योंकि वो बिल्कुल इब्तदाई अपनी चीज़ें थी। फिर उसके बाद एक और स्पेल आया, फिर वो ज़्यादा अपने ख़तरनाक था। और फिर जब मीडिया में हाईलाइट हुई ये सारी सब चीज़ें, तो फिर हमने ये चीज़ें करी कि हमने फिर ऐसे जो फलाई इदारे थे जो समाजी काम कर रहे थे, और कुछ हमारे और भी ऐसे इदारे थे, हमने उनके साथ मिल के काम किया। लोगों ने जो है वो कैंप्स लगाए और सारी सब चीज़ें करी। हमने कैंप्स नहीं लगाए, हमने बोला हम कैंप लगाएं, जो खर्चा कैंप के ऊपर करें वही खर्चा हम आगे अपने क्या नाम है दे दें, कर दें। तो हमने मुख्तलिफ इदारों के साथ और अपने फलाई अपने क्या नाम है काम करने वालों के साथ फिर हम ऐसे जॉइंट हैंड्स हो गए। तो फिर हमने जो है वो फिर समझे कि अंदरून सिंध में भी अपने काम किया। फिर हमने कुछ इस तरीके से किया कि हम जो थे वो डेली बेसिस पे खाना बनाने कर भी जो हम वहाँ पे बेचते रहे, क्योंकि उनके पास सर छुपाने तक की भी जगह नहीं थी। तो राशन जाता था तो वो कैसे बनाएंगे, किस तरीके से पकाएंगे। हाँ, तो वो फिर हमारा ये होता था कि फिर हम उनको अपने क्या नाम है इस तरीके से पके हुए खाने वो अपने भेज देते थे। क्योंकि कहीं पे मेडिकल स्कैम अपने खैमों में लगे हुए होते थे, वहाँ के जो वॉलंटियर्स होते थे उनको भी क्या नाम है हेल्प आउट करना होता था। फिर असल में जो लॉजिस्टिक जो था ना, जो रास्ते थे वो इतने मुश्किल हो गए थे, वो सारी सब चीज़ें ऐसी हो गई थी कि हमने कहा यार हम वहाँ जाएं और जाके मुसीबत में जो लोग हैं, परेशानी में लोग हैं, जो उनकी हम मदद करें, उल्टा हम वहाँ जाके फंस जाएं और लोग हमें निकालने के लिए आ रहे हो। तो बेहतर ये है कि हम बैक एंड पे रह के काम करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्लियर है इस चीज़ के ऊपर कि अपनी सेफ्टी भी साथ साथ करके चलना है। दिखने की बजाय खामोशी से काम करें। इसी वजह से आज मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं, कहते हैं यार आपने क्या काम किया, क्या काम किया, क्या काम किया। नहीं बोला भाई हमने जो काम किया अल्लाह पाक के पास। मैंने भी आपसे कहा जो आपने काम किया उसकी वीडियो दें, तस्वीरें दें, चीजें दें, तो आपने वो मुझे तो कुछ नहीं दिया। मैंने इसी वजह से, मैं सच्ची बात ही अख्तर भाई, हम नहीं बनाते तस्वीरें, नहीं बनाते वीडियो, नहीं बनाते, ना देने वाले का ना लेने वाले का। वो है ना कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले, तो अमली तौर पे करके दिखा रहे हैं ना। कोशिश तो यही है, अल्लाह पाक कबूल करे। सैयद ताहिर साहब, आप ये बताइए कि आप इलाकाई सतह पे कैसे काम करते हैं, आपका नेटवर्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या सेटअप क्या है? देखिए सेटअप सिंपल सा है कि जो जिसकी नीड होती है, सही है। अब जैसे किसी घर में राशन की नीड है, कोई बीमार है, बच्चे बहुत से स्कूल नहीं जा रहे हैं, इस टाइप के जो भी मामलात हैं उसको हम अपने अंदाज में देखते हैं। और आप तक लोग कैसे पहुंचते हैं? लोग हमारे नंबर उनके पास मौजूद होते हैं, जो हमारी जो वेबसाइट है या जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं उसके बाद उसके उन लोगों अभी भी बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे। बिल्कुल सुन रहे होंगे। और हमारे जो नंबर हैं वो डेफिनेटली मीडिया पे मौजूद हैं इस वक्त। अभी लोग उसी नंबर के हवाले से हमसे बात करते हैं, जिसकी जो नीड होती है वो हम तक पहुंचता है। और हमारी पूरी कोशिश होती है तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद हम वो उनकी नीड पूरी कर सकें। उसके लिए जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो ग्रुप है और उसके अलावा जो हमारा बिजनेस सर्कल है उसकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट है इस वक्त अभी। क्योंकि जैसे अभी फैसल ने कहा कि जी हमारा जो कंसर्न है, हमारा कंसर्न लोगों को दिखाना नहीं है,
जो अल्लाह ताला का हुक्म है। क्योंकि अक्सर सफेद पोश लोग तो इसी से घबराते हैं और कहीं राब्ता करते ही नहीं है, नहीं, क्योंकि वो कहते हैं वो कोई आएगी, गाड़ी आएगी छपी हुई प्रिंटेड मोहल्ले में। नहीं जी, हम मुकाम फ्लैट में, हम अख्तर मुकाम भाई, करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक वाकया ऐसी एक चीज बताता हूँ मैं आपको। जी। एक कॉल आई हमारे पास। अच्छा, वो नहीं बता रहे थे, कोई चीज नहीं कर रहे थे, तो देखिए हम तो कोई नहीं होते पूछने वाले, जब अल्लाह दे रहा है और अल्लाह तो हर एक को दे रहा है, तो हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है। लेकिन बात यह कि हमारे पर भी एक जिम्मेदारी है ना, अमानत है ना, तो हमें थोड़ा सा पता करना पड़ता है। लेकिन वो उनकी उस कॉल से अंदाजा हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि हमारी एक राशन राइडर सर्विस चलती है, जिसमें ये होता है कि कोई भी हमें राशन देता है तो हम उससे राशन लेते हैं और वो मुस्तहिक तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि ज़कात का भी यही हुक्म है ना कि मुस्तहिक तक पहुंचाओ। लेकिन बंदा जो है आजकल इतनी अपने कामों में, इस चीज़ों में है कि वो उस मुस्तहिक बंदे को ढूंढ नहीं पाता। तो हमारे पास जो जैसे ताहिर ने बताया कि नंबर से, हमारा जो नंबर है और जो हमारे अपने क्या नाम है फेसबुक के ऊपर चीज़ें हो रही होती, चल रही होती है, और फिर ये सारे काम रेफरेंसेस के ऊपर है ना, कि किसी के घर की मासी का मसला है, किसी के ड्राइवर का मसला है, किसी का कोई ऐसा मसला है, तो वो इसी तरीके से हमारे पास वो कॉल आई, और वो जब आप यकीन करें कि उनकी आवाज़ से ये बात चीज़ का पता चल रहा था कि वो वाकई ही किसी मुश्किल परेशानी में हैं। मैं ये नहीं तो तुम्हें बताऊंगा कि क्या उनको मुश्किल परेशानी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ना वो करम फरमाया, और हमने उनकी मुश्किल के लिए, परेशानी के लिए हमने जो है ना वो दौड़ धूप शुरू कर दी, कि अपने लोगों को बोलना कहना शुरू कर दिया। तो हमने कुछ इस तरीके से उनकी मुश्किल परेशानी को हमने दूर किया। लेकिन आप यकीन करेंगे अख्तर भाई, वो एक अच्छी लोकेलिटी से, एक बेहतरीन एरिया से थे वो, लेकिन वक्ती तौर पे परेशानी पे आ गए। सफेद पोश लोग थे ना, ये इस वजह चीज। से। तो हम हमारे पास एक लाइव कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात कर लें, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? अपना नाम बताइए, कहाँ से बात करें? तीन हट्टी से कौन बात कर रही है? अपना नाम बताइए। खायरा बानो, मेरी बेटी है, बहुत बच्चे बीमार है, परेशान है, राशन नहीं है खाने को, दवाई के लिए नहीं है, के शौहर के ना पोलियो टाइम में, तो इतना नहीं कर सकता है कि कुछ कर ले, मतलब। अच्छा, चलें ठीक है, आप अपना नंबर नोट करवा दें तो हम नंबर शेयर कर देते हैं, तो फिर इनकी टीम, हम कराची की टीम जो है वो आपसे रब्ता कर लेगी। खातून है एक तीन हट्टी से, तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नंबर उनका नोट कर लें, नाम, नंबर और एड्रेस भी अगर मिल जाए तो वो भी नोट कर लें, ताकि इनसे फिर रब्ता किया जा सके। तो ये देखें, ये तो बहुत सारे ऐसे इदारे यहाँ मौजूद हैं जिनके बारे में हम पर्सनली जानते भी हैं, बहुत सारे लोग हमें बताते भी हैं कि वो जब किसी के घर जाते हैं इमदाद देने, तो बोलते हैं इसके घर में तो फ्रिज भी है, इसके पास तो टीवी भी है, इसके पास तो बाइक भी है, तो भाई क्या वो मतलब बगैर कपड़ों के हो तब आप उसकी इमदाद करेंगे? मतलब सफेद पोशी किसको कहते हैं? सफेद पोशी बेसिकली, आप बताइए ना फैसल, आप बताइए अली साहब। सफेद पोश कोई भी हज़ात, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई मोहल्ले में भी हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकता है, लेकिन सफ़ेद पोश का ये मतलब है कि वो आपको अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिससे उसकी दिल आज़ारी ना हो। मतलब सफेद पोशी का क्या ये मतलब नहीं है कि भाई वो अपनी रिस्क के हलाल से जो मेहनत कर रहा है उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, और एक गैप आ रहा है बीच में, तो वो सफेद पोशी हुआ ना आज के दौर तो में। यहाँ ये ऐसे इदारे हैं, वो इस तरह के जवाब दे के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये मुस्तहिक नहीं है, सर अभी यही चीज और है। लाइनें लगा के दरखास्तें लिखवाते हैं, वही लाइनें लगा के। असल में मोहम्मद अली सफेद पोशी का असल में मजाक उड़ाए जा रहे हैं यहाँ पर। वही मकसद है कि हम आज महंगाई की सुरूज पर है, इसके लिए एक आदमी जिसकी आज 25,000 रुपए तनख्वाह है, किराए के घर में रहता है, और उसके 1-2 बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो वो क्या कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके उन पैसों के अंदर वो जिस तरीके से अपना गुजर औकात कर रहा है, इसके ऊपर तो उसको पहले शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि आप और हम या साहिब इस्तिताअत जिन्हें अल्लाह ताला ने बनाया है, वो लोग भी इस वक्त अपनी पोजीशन में क्राइसिस में हैं। तो ऐसा गरीब और मुस्तहिक जो मेरे और आपके करीब में है, लेकिन हम देखते नहीं हैं,
ایسا بس ہم غریب سب مستحق کو- تو نہ وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا جی سکتا ہے، جی 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 نہ وہ اپنے محلے میں جا کے بیٹھ کے بالکل، کھانا کھا سکتے ہیں، نہ بالکل۔ کہیں اور وہ جا کے اپنے وہ کر رشتہ سکتا ہے۔ داروں سے نہیں ڈسکس کر سکتا، وہ آپ سے نہیں ڈسکس کر سکتا، اس تک پہنچنا ہے، اور اس تک کیسے پہنچنا ہے؟ آج کے بعد آپ کے اللہ نہ کرے کوئی ہو، لیکن بشرط انسان کوئی آپ کے قرب و جوار میں ہو، آپ اپنے معاملات میں بزی ہیں، آپ ہمیں ان کا نمبر دیں، ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ آیا ان کی کس چیز کی نیڈ ہے۔ انویسٹیگیٹ کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ سفید پوش ہیں یا نہیں ہے، انویسٹیگیٹ یہ کرنا ہے کہ ان کو کس چیز کی نیڈ ہے۔ کسی فیملی کو ایسی نیڈ ہے کہ ان کی بچیاں سلائی کر سکتی ہیں تو ہم ان کو سلائی مشین سلائی پہنچا مشین دیں۔ بالکل۔ کسی جگہ ایسا ہے وہ صاحب استطاعت بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کی سیلری ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بچے کے ساتھ بیماری ہے اور وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کو ہاسپٹل کی اویئرنیس دینا، اس کو ہاسپٹل کے ایک لیے کال مدد ہمارے کرنا۔ پاس ایک اور جناب، لائیو کال ہے، وہ لے لیں۔ جی السلام علیکم، کون بات کریں؟ وعلیکم السلام، جی میرا نام مانور صاحبہ کہاں سے ہے۔ بول رہی ہیں؟ ذرا آواز ہلکی آ رہی ہے ان کی بہت۔ میں کراچی سے ہوں۔ جی کیا کہنا چاہیں گی مانور صاحبہ؟ وہ میرا ہم کراچی آرگنائزیشن میں ایک صاحب ہے علی میمن، میرا ان سے بات ہوئی تھی۔ میں نا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں 3000 روپے ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ہم کراچی محمد علی صاحب سے بات ہوئی تھی۔ دوسرے ہیں۔ اچھا علی صاحب سے بات ہوئی تھی، تو کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ میں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ان کے ساتھ اچھا رابطے ڈونیٹ میں کرنا رہیں، چاہتی ہیں آپ؟ ان اچھا کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ چلیں وہ آپ انشاءاللہ۔ انہی سے رابطہ کر کے، یہاں یہ ٹیم کہہ رہی ہے کہ آپ انہی کے حوالے کر دیں تو بھی بہتر ہے، اور ورنہ آپ اگر چاہیں گی تو پھر باقی ان میں سے کسی سے کانٹیکٹ بھی کر سکتی ہیں۔ چلیں بہت شکریہ آپ کا جذبہ جو ہے وہ بڑا قابل تعریف ہے۔ محمد علی ہمارے جی ایس ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، اچھا رائٹ۔ تو وہ بھی بہت ساری سب چیزوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کا- فیصل امین صاحب زبردست، دیکھیں کام آپ کا بہت زبردست ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے دل سے جو ہے نا اس میں بہت ساری باتیں نکلیں گی، جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں سفید پوشوں کے ساتھ، خاص طور پہ جو جنہیں اتنا ذلیل کیا جاتا ہے سینٹرز پہ، اور جگہ جگہ لائنیں لگوا کے، درخواستیں لکھوا کے، 10 چکر لگوا کے، اس کے بعد بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، مجبور ہوتے ہیں بیچارے۔ لیکن اب ہم اگلے کسی شو میں پھر اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے، وقت بالکل ختم ہو گیا ہمارے پاس۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ اور ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کراچی کے بارے میں آپ کو بتا سکیں، اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، متفق نہیں ہوں گے، تو کراچی کے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ ہم متحد ہوں گے تو کس سے جواب طلبی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہرین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔